that is low hemoglobin and low hematocrit for the age and gender. Anemia reduces oxygen carrying capacity of blood because the red cells contain hemoglobin, which carries the oxygen molecules attached to them. So when there is anemia, there is hypoxia. When we study anemia, we classify them. Classification makes this easy to understand the pathogenesis and the line of action. So classification for anemia is on two lines: morphological classification based on the red cell morphology, red cell size, and red cell color. And the other type of classification is based on pathogenesis, cause-based. So for this presentation, we will be discussing cause-based classification of anemia. So this is the slide showing causes of anemia: production defects, maturation defects, survival defects, sequestration, blood loss. Sequestration is when the blood is sequestered in the spleen. For any reason, there is splenomegaly. Survival defects mean, generally speaking, hemolytic anemias. Okay, maturation defects are some other disorders where there's everything is okay, but the cells do not mature. And production defect, when there's defect in production. Okay, it can be because of nutritional deficiencies and bone marrow failure, first and foremost. तो ये चीजें हम आज डिस्कस करेंगे. Okay, जी. First of all, we will be discussing iron deficiency anemia under the heading of anemia of diminished erythropoiesis. Iron deficiency is the most common nutritional disorder in the world. Okay, now this is you all know. And what is the role of iron? What does iron do? We can see in this diagram, these are the red blood cells, and these molecules inside are oxygen bonded with hemoglobin molecules. Hemoglobin molecules contain iron, and that is the role of iron to bind oxygen or carbon dioxide as is present in the circulation. So iron is part of hemoglobin, and hemoglobin transports blood tests. Sources of iron, sources of heme iron and non-heme iron. आपको यहाँ पे दो तस्वीरें नजर आ रही होंगी, दो headings. Heme iron is related to meat and meat products, and non-heme iron is vegetables and nuts. Okay, we can see the list here: eggs, nuts, raisins, dried and baked beans, etc., etc. So, what is the difference? What is the difference between the two sources of iron? First of all, we will study that Western diet contains 10 to 20 milligram of iron. This is what is standard. Okay, ना हमारे यहाँ की diet में तो iron होता नहीं because of financial reasons and unawareness. Then iron, it comes as two forms: heme and non-heme iron. Heme iron is, as I told you, meat-based iron, and 20% of the heme iron is absorbed by the body as compared to only 1 to 2% of non-heme iron. So फलों की या फ्रूट्स की जो आयरन होती है उसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है, मीट आयरन जो है वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होती है. Iron content, if you talk about the iron content of the body, meaning iron contained hemoglobin in the enzymes and other tissues, it is 2.5 gram in women and 6 gram in men. I think we can understand why it is so different, because females lose blood, that is iron, cyclically every month. So they contain lesser sources of iron, lesser content of iron. Then there are functional and storage compartments in which the body iron is divided. Functional iron in the body is transported by transferrin. Before we go on to study the functional iron and storage iron, we see that transport of iron in the body, in the circulation, to the tissues is by transferrin, and this transferrin is formed in the liver. Okay. Iron content, iron levels in females are 100 microgram per day, and in male it is 120 microgram per day. Storage iron is ferritin and hemosiderin, and functional forms of iron is hemoglobin, myoglobin, enzymes. So there are two forms of iron. Storage iron, जब iron stores are replete, और वो as ferritin और hemosiderin सेव होते हैं in the liver and in the macrophages. Functional form वो जहाँ पे iron अपना effect exert करती है: hemoglobin for the sake of binding oxygen, myoglobin for the sake of providing strength and again binding oxygen. And certain enzymes are also there who work
best when they have their normal iron content in. So this is the figure we can see. This is basically the big one is the red cell to red blood cell. This the normal functional iron, okay, the pink color. Then the other, this iron is coming from the marrow, ठीक है, erythroid marrow. यहाँ पे आयरन कहाँ से आ रही है? लिवर से, ठीक है. हेपेटोसाइट्स के अंदर ही आप देख रहे हैं रेड कलर का फिर बना हुआ है जो कि फंक्शनल आयरन को शो कर रहा है. यहाँ कहाँ से आ रही है? And the liver gets its iron from the transferrin, which is carrying the iron inside the circulation. Okay? And in turn, transferrin has carried its iron from the monocyte macrophage system, जिसे हम कह रहे हैं hemocyte ferritin store भेजा है. ठीक है? और यहाँ पे सब जगह पे आयरन बेसिकली कहाँ से आ रही है? ट्रांसफेरेंट में कहाँ से आ रही है? मेन सोर्स जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है. Then there's monocyte macrophage system. All of these put their iron into the transferrin, and transferrin then carries it to the, okay, and it also carries the iron to the muscle and other parenchymal cells. Daily losses of iron are 1 to 2 milligram, और ये किस तरह से होते हैं? GI losses के लिए, ठीक है. GI losses के लिए GI की जो mucosa है contains iron that is excess of the body's needs. So daily mucosa shed होती है जिसे हमारी daily skin होती है, उसी तरह से daily mucosa is shed, and with it 1 to 2 milligram of iron is daily shed in a normal person, ठीक है. Male female both. So storage iron is mobilized when required. जहाँ पे जो iron store में पड़ी हुई है monocyte macrophages में या liver के अंदर, it is mobilized when body needs iron. ठीक है. Now we are coming over to the iron absorption. Iron is absorbed in the duodenum, ठीक है. And there are again we can see two different forms of iron, heme iron and non-heme iron, and both of them are absorbed through different mechanisms. Heme iron is, as we can see, goes straight in, okay, through heme transporter, whereas the non-heme iron is first converted from ferric to ferrous form and then it is absorbed. Heme iron is basically in the ferrous form and non-heme iron is in the ferric form. तो दोनों की absorption different होती है. और once in the duodenal cell, they are then moved out of the duodenal cell into the circulation through ferroportin, and ferroportin again changes the valency of the iron molecule, and then it goes into the blood and is bound to the plasma transferrin, which carries it to the marrow and all the liver, etc. Okay. Hepcidin जो यहाँ पे मैंने highlight किया हुआ है, this is the regulatory protein. It is low when the body needs iron, so that iron is absorbed from the body, and when the body is filled with iron, sort of iron overloaded or normal iron stores are there, hepcidin is stopped. It is being synthesized in the liver, but the synthesis stops when there is normal iron level in the body. तो बढ़ जाता है जब आयरन डेफिशिएंसी, सॉरी क्या कहते हैं, बढ़ जाता है जब उसकी इंफेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, और इट स्टॉप्स द आयरन फ्रॉम द स्टोर्स टू द सेल्स. दो तरह से काम कर रहा होता है. हेप्सिडिन in cases of infection, inflammation and iron overload, it increases, ठीक है, and it stops the iron to be transferred into the blood. And when the body needs iron, hepcidin levels are stopped, hepcidin synthesis is stopped, और ताकि iron जो absorb भी हो सके और transferrin के साथ bond भी हो सके, ठीक है जी. So absorption is different from heme and non-heme iron. Hepcidin is a regulator protein for iron absorption formed in the liver. Causes of iron deficiency: daily iron needs 7 to 10 milligram for men and 7 to 20 milligram for women. Dietary deficiency occurs basically in infants, impoverished people, older individuals, and teenagers. Infants and teenagers may, when there is insufficient iron in the food to meet their requirements, and impoverished people and older individuals in the financial conditions के उनको adequate iron मिलती नहीं, या they are very sick and they lose their iron stores. Impaired absorption is the cause of iron deficiency when there is malabsorption or gastrectomy, because the stomach produces HCl, which causes the release of iron and all that. उसको प्रोटीन से रिलीज करके उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. तो गैस्ट्रेक्टमी हो गई है तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन डिले हो सकती है, मेल एब्जॉर्प्शन में जा सकता है. इसके अलावा अगर डोडेनल सर्जरी हुई है, डोडेनल कोई डिजीज है, वहां से भी वो मेल एब्जॉर्प्शन हो सकती है पेशेंट. ठीक है. क्रॉनिक ब्लड लॉस, GI ब्लीड है ड्यू टू कैंसर, ड्यू टू अल्सर्स, तो वो क्रॉनिक ब्लड लॉस
and menorrhagia can cause, GIB and menorrhagia can cause chronic blood loss. Okay, high intake of polyphenols also affect iron absorption, and polyphenols are certain chemicals in fruits and vegetables, for example, apples, onions, chocolate, and red cabbage. These bind to the iron and affect the iron absorption. ठीक है जी? तो एक तो ये कि फ्रूट्स वगैरह में होती ही कम है आयरन, दूसरे ऑब्जॉर्ब भी कम होती है, दूसरे पॉलीफिनॉल्स जो है इसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं. Then we are talking about morphology of iron deficiency anemia. The red cells, you can see they are normal, and these are the abnormal cells. Normal in the sense they are rounded cells and they are completely, almost completely filled with pink color. Okay? This is the signal of that the cell is filled with iron. And there the cells are only outlines are shown. ठीक है, the inner pellar area is increased. और ये जो है बता रहा है कि iron deficiency है पेशेंट को, hemoglobin synthesis जो है low है. So hypochromic microcytic anemia, hypochromic meaning ये whiteness of cell बढ़ जाती है और microcytic cell size छोटा हो जाता है as compared to this, these cells are smaller. This is the sign of hypochromic microcytic anemia, is one of the signs of iron deficiency. When they are talking about iron deficiency anemia bone marrow, we can see these are the, ये जो है सारे erythroid precursors, ठीक है, और ये बढ़े हुए हैं in the case of iron deficiency anemia, because to compensate for the loss in red cells, to compensate for the decrease in red cells caused by iron deficiency. So increased erythroid progenitors, absent stable iron in marrow. ठीक है, अब absent stable iron in marrow, ये आपका पेशेंट का aspirate marrow है, ठीक है, where the blood cells are formed, and these are the this is the red cell precursor, ठीक है, और ये बैरो के अंदर नजर आता है और इसके अंदर ये ब्लू डॉट्स थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं. These are showing the iron स्टोरेज आयन. ठीक है, स्टोरेज आयन सिर्फ लिवर और उसमें मैक्रोफेज में नहीं होती, ये रेड सेल्स के अंदर भी थोड़ी बहुत पड़ी होती है एज फैट. ठीक है, ये एक मैरो जिसके अंदर ब्लूनेस जो हमें नजर आ रही है, ब्लूनेस इज साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन स्टोन्स. ठीक है, दिस इज अ मैरो विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. और यहाँ पे हमें कोई ब्लू कलर ब्लू स्टेनिंग नजर नहीं आ रही है. दिस मींस दैट पेशेंट हैज लॉस्ट आयरन स्टोन्स. तो दिस इज अ डेफिनेट साइन. ठीक है, अगर यहाँ पे आयरन नहीं है तो पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी में डेफिनेटली होगा. Although we don't do bone marrow for the sake of diagnosing iron deficiency anemia. ठीक है, उसके केमिकल टेस्ट होते हैं. ओके, क्लिनिकल फीचर्स जो है वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं एनीमिया के. नॉन स्पेसिफिक से मुराद है कि जनरली फीचर्स लाइक वीकनेस है, लेथार्जी है, डिजीनेस है, जो सारे किस्म के एनीमियाज में होगा. ये पिंक स्टोन स्टेन जो है जो हम पीछे देख रहे थे, ये पिंक जो है ये रेजिडुअल स्टेन है. ये आपका जनरली मैरो के एनवायरनमेंट को स्टेन कर रहा है. ये ब्लू कलर जो यहाँ पे नजर आ रहा है एरो के साथ साथ हम देख रहे हैं, ये जो चीजें सारी ये आयरन को स्टेन कर रही है. ठीक है, जो हमने स्टेन इस पे लगाया है जहाँ पे आयरन मौजूद होगी वहां ये ब्लू हो जाएगा, यहाँ पे सारा ब्लू हो जाएगा. तो दिस इज शोइंग दैट आयरन इज प्रेजेंट. और यहाँ पे ये रेड सेल के अंदर जो ब्लू डॉट्स अगर आप अप्रिशिएट कर सकें तो छोटे छोटे ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये भी आयरन की प्रेजेंस को शो कर रहे हैं एज फेरेटिन. ठीक है ना, फेरेटिन एंड मोसिग्डो. यहाँ पे हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ पिंकनेस नजर आ रही है. और पिंकनेस इज नॉट अ साइन ऑफ आयरन, प्रेजेंस ऑफ आयरन. तो ये पिंकनेस जो हमें बता रही है, ब्लूनेस नहीं है इसके अंदर, कोई ब्लू स्टेन नहीं है. मतलब ये कि आयरन डिप्लीटेड है. ठीक है, देयर इज नो आयरन इन स्टोर्स. बात क्लियर हो गई? अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में नॉन स्पेसिफिक फीचर होते हैं, वीकनेस वगैरह, लेथार्जी वगैरह सब होती है. देन देयर आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अंडरलाइंग कॉज ऑफ एनीमिया. एनीमिया किस वजह से हुआ है? जीआई लॉस की वजह से हुआ है तो जीआई रिलेटेड सिम्टम्स होंगे. अगर जो है वो डाइटरी डेफिशिएंसी से हुआ है तो वो भी पेशेंट की हिस्ट्री में मौजूद होगा. मेलेरिया है तो वो पेशेंट की हिस्ट्री में मौजूद होगा. बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी इज अ साइन, इट इज नॉट अ डिजीज इटसेल्फ. जब हमें पढ़ाया जाता है वो ये कि आयरन डेफिशिएंसी शो कर रही है, एनीमिया शो कर रहा है कि अंदर कोई चक्कर चल रहा है. ठीक है ना, क्योंकि आयरन बॉडी इस तरह से स्टोर करती है कि वो 1 to 2 मिलीग्राम से यूज करता है, वो भी थ्रू नॉर्मल गैस्ट्रिक शेडिंग. अदरवाइज आयरन को बॉडी से निकालने का हमारे पास कोई एफिशिएंट तरीका नहीं है अनलेस के ब्लड लॉस हो. अच्छा, then there is pyelonephria, spooning of nails, abnormal nails are there. ठीक है, alopecia जहाँ बाल झड़ जाते हैं. And then is atrophic tongue, tongue जो आपकी
वो क्या कहते हैं पेपली होते हैं, रफ सी नजर आती है, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा वो भी फ्लैट हो जाता है. इंटेस्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन, आयरन डेफिशिएंसी कैन कॉज इंटेस्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन, आयरन डेफिशिएंसी कैन बी द रिजल्ट ऑफ इंटेस्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन. तो हमको दोनों रूल आउट करने होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आयरन इज needed for the enzymes also, ठीक है ना, enzymes function at many places. तो अगर intestinal iron deficiency है तो intestinal mucosa को भी affect करती है. ओके, पीका क्या चीज होती है? पीपल विद आयरन डेफिशिएंसी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्ट्रेंज थिंग्स. दीवारों का चूना खाते हैं, चॉक खाते हैं, रबर खाते हैं, ठीक है ना, मट्टी खाते हैं. तो ये जो है ये इसलिए हो रहा होता है कि देयर इज डिप्लीशन ऑफ आयरन फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी इंक्लूडिंग द सीएनएस. और आयरन डेफिशिएंसी सीएनएस के टिश्यूज को ऐसे अफेक्ट करते हैं कि दे स्टार्ट ईटिंग पीका, दे स्टार्ट डेवलपिंग पीका, इंटरेस्ट इन एबनॉर्मल थिंग्स, ठीक है जी. बर्फ खाते हैं, टू मच आइस. देन देयर इज प्लमर-विंसेंट सिंड्रोम. प्लमर-विंसेंट सिंड्रोम जो है बेसिकली वो it is a triad. There is dysphagia, difficulty in swallowing, iron deficiency anemia, and esophageal gaps, esophageal constrictions या fibrosis. और esophageal fibrosis जो होती है वो इरिटेशन की वजह से होती है. बेसिकली अगर जीआई प्रॉब्लम है तो डिस्फेजिया है, खाने में मसला है, esophageal irritation होगी, और iron deficiency may be as a result of all those things, ठीक है जी, जिसको हम उसके कॉज बता देते हैं. वो सब चीजें एक साथ हो रही होती हैं. esophageal irritation हो रही होती है, डिस्फेजिया हो रहा होता है, उसकी वजह से वो ब्लड लॉस होता है, iron deficiency हो सकती है. How do we test for iron deficiency? एक तो हमने देखा मैरो हुआ है, ठीक है, लेकिन मैरो तो जाहिर हम नहीं करेंगे, मैरो हम नहीं करेंगे पेशेंट के लिए. इट्स वेरी इन्वेसिव टेस्ट जस्ट टू सी आयरन लेवल्स. तो हम उसके लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आयरन प्रोफाइलिंग करवाते हैं, ठीक है. आयरन प्रोफाइलिंग में बहुत सारे नए पुराने टेस्ट हैं. दीज आर द 4 मोस्ट कॉमन टेस्ट. सीरम आयरन लेवल जो कि लो होता है आयरन डेफिशिएंसी में, ट्रांसफरेंस सैचुरेशन जो कि लो होती है, यानी कैरियर प्रोटीन इज नॉट सैचुरेटेड विद आयरन, कैरियर प्रोटीन इज एम्प्टी, तो कैरियर प्रोटीन की सैचुरेशन का लेवल लो होगा. total iron binding capacity TIBC, iron binding capacity of what? Iron binding capacity of the transfer है ना, obviously. तो capacity is high, saturation is low, यानी कि वो बहुत सारी खाली कुर्सियां मौजूद हैं जिस पे आयरन बैठ सकती है, ठीक है ना. Think of it like that. And ferritin is the storage iron, so ferritin will be low. This is the profile in case of ideal iron deficiency anemia, but it can be complicated when there are infections and fevers underlying, because they can cause firstly high ferritin. Ferritin is an acute phase reactant. कोई infection या fever वगैरह बॉडी में होता है तो ferritin बढ़ जाती है. ferritin बढ़ने का मतलब आयरन बढ़ना नहीं होता. ferritin बढ़ने का मतलब है ferritin का acute phase reactant के तौर पर बढ़ना. तो वो आपके टेस्ट में हाई आती है. तो अगर पेशेंट क्लिनिकली और अदरवाइज आयरन डेफिशिएंट लग रहा है, ferritin हाई है, तो उसकी रूल आउट करनी पड़ती है आपको. इसीलिए खाली ferritin नहीं करवाते, पूरी आयरन प्रोफाइल करवाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर. ओके ओके ओके, ठीक है जी. तो 45 मिनट्स का जो है ना, उसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी चल रही हूँ. Okay, now we are moving on to megaloblastic anemia. And megaloblastic anemia is basically there is impaired DNA synthesis and ineffective hematopoiesis. The anemia is caused by DNA problem, not by hemoglobin problem. ठीक है जी. Ineffective hematopoiesis का क्या होता है कि blood cells are being formed in the marrow, but they are not coming out in the circulation. बोन मैरो को देखेंगे कि वो ब्लड सेल्स से भरा हुआ होगा, और सीबीसी जब देखेंगे कि ब्लड काउंट उसमें एनीमिया भी है, तो प्लेटलेट्स भी लो है, तो डब्ल्यूबीसी भी लो है. ऑल 3 आर लो और इन एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है जी. तो अब ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड. इन दोनों की वजह से या इन दोनों में से किसी भी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है. और इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है? दे आर द कोएंजाइम्स इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए बेसिस, स्पेसिफिकली थायमिडीन. थायमिडीन की सिंथेसिस के लिए फोलिक एसिड और B12 दोनों की जरूरत होती है.
So deficiency or impaired production, impaired metabolism causes defective nuclear maturation and delayed cell division. इसकी न्यूक्लियस जो है मैच्योर नहीं होता, और जब न्यूक्लियस मैच्योर नहीं होता तो सेल डिवीजन जो है वो डिले होती है। ठीक है, इमैच्योर सेल ज्यादा मिलेंगे आपको, मैच्योर सेल्स कम मिलेंगे। अब जो मैच्योर हो भी जाते हैं उनकी शक्ल सूरत एबनॉर्मल होती है। ठीक है जी, ओके। So now the sources of vitamin B12, animal products again are the good source of vitamin B12. ठीक है, daily requirement is 2 to 3 microgram. It is stored in the liver, और adequate stores अगर होते हैं तो 2-3 साल तक चल जाते हैं। मतलब आज अगर कोई पेशेंट खाना बंद कर दे, B12 लेना बंद कर दे, तो 2-3 साल लगेंगे उसको डेवलप होने में B12 deficiency, sufficient B12 deficiency. Plants and vegetables contain little cobalamin. Again, जो वेजिटेबल या प्लांट बेस्ड फूड्स हैं उनमें B12 नहीं होती या थोड़ी सी होती है। वो इसलिए होती है कि दे आर कंटामिनेटेड बाय माइक्रोबियम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर उन फूड्स के अंदर माइक्रोबियम कंटामिनेशन हो जाए तो फिर वो कोबाल नहीं बनाते, हमारे बैक्टीरिया ही बनाएंगे कोबाल नहीं, प्लांट्स और वेजिटेबल्स खुद नहीं बना सकते। The absorption of B12 specifically the absorption of B12 needs intrinsic factor from stomach parietal cells. ठीक है, and pepsin which is present in the stomach frees the B12 from dietary proteins. जब absorption की तरफ जा रहे हैं इसका, ठीक है जी। Haptocorrin is a protein which carries B12 from stomach to the duodenum. सॉरी, हाँ, टू द इलियम। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे डुओडेनम नहीं है, इलियम है। जो B12 होती है वो इलियम में एब्जॉर्ब होती है, डुओडेनम में आयरन एब्जॉर्ब होती है। देन ट्यूबुलिन इज द रिसेप्टर फॉर इंट्रिंसिक फैक्टर इन इलियम। इंट्रिंसिक फैक्टर B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, जिसका रिसेप्टर जो होता है वो इलियम में होता है, लेकिन सिक्रीट वो स्टमक से होती है। ठीक है, पैप्सिन जो है वो B12 को डायरेक्टली प्रोटीन से निकालता है, यानी कि जो पैप्सिन जो हम ले रहे हैं, मीट या जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, उसमें जो आयरन है उसको अनबाउंड करेगा पैप्सिन। ठीक है जी। देन देयर इज ट्रांसकोबालामिन 2. Transcobalamin 2, what does it do? When once the B12 is absorbed in the blood, it carries it from there to the marrow for the synthesis of blood cells. So intrinsic factor, pepsin, haptocorrin, cobalamin, transcobalamin, all of these have specific roles in the B12 metabolism. ठीक है ना, ये डायग्राम में जो थोड़ी सी रफ है धुंधली है, लेकिन बहरहाल इतना पता चल रहा है कि we have got this dietary B12, it enters into the stomach, and R binders and pepsin etc. separates it from the meat, and then intrinsic factor binds this. ठीक है, this is the intrinsic factor and this is the B12. ये bind हो जाती है, उसके बाद फिर पेनक्रियास के अंदर मजीद इस पे एक्शन होता है, प्रोटीन वगैरह हटा दी जाती है, और ये जाके फिर इलियम में लगती है, या ट्यूबुलिन रिसेप्टर्स के थ्रू इट गोज इनटू द blood finally, and then there it is carried by the transcobalamin 2, जो कि लिवर में जाके स्टोर होती है या फिर मैरो में जाके अपना इफेक्ट शो करती है। Functions of B12. Okay, this is the B12. ठीक है, B12 will be methylated, मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, और फिर मिथाइल ग्रुप दोबारा हट जाएगा, दोबारा कोबालामिन बन जाएगी। तो ये जो साइकिल चल रही होती है, दिस इज पार्ट ऑफ सर्टेन अदर साइकिल्स। ठीक है ना, एक साइकिल तो यहाँ पे ये है जो होमोसिस्टीन से मिथेनिन बना रही है, एक साइकिल ये है जो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से फोलिक एसिड बना रही है। ठीक है, इन दोनों साइकिल्स की अपनी सिग्निफिकेंस है। होमोसिस्टीन और मिथेनिन का जो साइकिल है, ये तो आपका माइलिनेशन बना रहा है, माइलिन शीट जो होती है नर्व्स की, जो प्रोटेक्ट करती है डैमेज से, उसको यही बना। ठीक है जी, और ये जो साइकिल चल रही है फोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट वाली, ये आगे जाके N5 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाती है, और ये जो है फिर आगे चल के DUMP को, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट को थायमिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। दिस थायमिडीन मोनोफॉस्फेट इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डीएनए। ये रॉ मटेरियल से DTMP बना, और जो कि डीएनए में जाके अटैच हो गया, तो इस एक्शन को ये करता है। ठीक है, ओके। So methyl cobalamin gives methyl to homocysteine, which makes methionine. अब ये जो कोबालामिन रह गया, हाउ विल इट रिकवर मिथाइल जिसने लॉस किया, वो कैसे लेगा? वो लेगा मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से, यहाँ से लेगा। ठीक है, जब ये यहाँ से लेगा तो फिर ये फोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोबारा मिथाइलेटेड हो जाएगा। ये जो है फिर 9,5,10 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमने देखा।
अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब B12 डेफिशिएंसी होती है, नहीं भी हम देख लेते हैं, B12 डेफिशिएंसी जब होती है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये आगे नहीं जाता, ठीक है, ये ट्रैप हो गया एक तरह से, और ये आगे नहीं जाएगा तो फिर आगे BTMP नहीं बनेगा। नंबर 2, ये खुद भी इसकी सिंथेसिस भी इफेक्ट होती है, एक तो ये ट्रैप हुआ है, दूसरे इसकी सिंथेसिस भी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो साइकिल चल रही है मीथियोनिन से, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल जिसको चाहिए होते हैं टू मेक N5 methyl tetrahydrofolate, तो ना तो ये बन रहा होता है ना ही आगे कुछ बन रहा होता है, दिस इज ट्रैपिंग, ठीक है, एंड दिस अफेक्ट्स द DNA synthesis. So then B12 deficiency, folate is trapped as N5 methyl tetrahydrofolate. Also this form is not formed, एक तो ट्रैप हुआ है, दूसरा बन नहीं है, ठीक है, एंड सो जो थायमिडाइल सिंथेटेज है उसको चूंकि फोलेट को एंजाइम नहीं मिल रहा और वो डीएनए सिंथेसिस को अफेक्ट करता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और चीज हो रही है, यहाँ पे एक और साइकिल है मिथाइल मैग्नेटाइट को एक सक्सेनाइल को जो कन्वर्ट होता है, ठीक है जी, इसको B12 चाहिए होता है। अब जब यहाँ पे B12 नहीं होगा तो ये मिथाइल मैग्नेटाइट को जो है ये बैकलॉग में आ जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, इससे जो है एब्नॉर्मल माइलिन बनेगी, ठीक है। यहाँ से लैक ऑफ मिथियोनिन है, जो पिछली साइकिल लिखी थी कि होमोसिस्टीन से मिथियोनिन बनती है, वो भी नहीं बन रही, प्लस यहाँ पे भी इसका इफेक्ट होता है, यहाँ से मैंने मिथाइल मैलिक एसिड आता है जो कि मिथियोनिन के साथ मिलके माइलिन बनाता है, यहाँ भी नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा, एब्नॉर्मल माइलिन बनती है और फिर नर्व्स डैमेज होती हैं, उसकी वजह से CNS की डिफेक्ट्स होते हैं, जो भी हम देखेंगे। मिथाइल मैलिक CoA चेंजेस टू सक्सेनाइल CoA, देन लो B12 causes this substrate buildup, ठीक है, and so abnormal fatty acids are formed causing faulty malformation, ठीक है, this is the complication of B12 deficiency. And B12 deficiency, now we are going to the causes. The causes include dietary, जो कि बहुत रेयर है, जैसे कि हमने कहा बहुत लॉन्ग इसका स्टोरेज पीरियड होता है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, पर्निशियस एनीमिया जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसे हमने देखा है, इसीलिए हमने इसको हाईलाइट किया, गैस्ट्रेक्टमी, इंट्रिंसिक फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, स्टमक से निकलता है, स्टमक की सर्जरी कर दी जाए तो इंट्रिंसिक फैक्टर लूज हो जाएगा, एक्सेल भी लूज हो जाएगा, दूसरी चीजें नहीं होगी। पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, ठीक है, फिश टेल फॉर्म विच यूटिलाइजेस आवर सोर्सेज ऑफ B12, वो हमारा सब कुछ खा जाता है हमारे पेट में बैठे बैठे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। देन H. pylori इंफेक्शन, ठीक है ना, स्टमक को अफेक्ट करता है, so these are the causes. Then moving on to pernicious anemia specifically. So pernicious anemia is autoimmune gastritis. It impairs the production of intrinsic factor. Occurs in all racial groups, ठीक है ना, काले गोरे की कोई शर्त नहीं है, Caucasian and Asians और median age of diagnosis is 60 years, ठीक है, लेकिन we all know कि females जो होती हैं they are more prone to develop autoimmune disorders, so they may have it younger ages. as a group of कोई बहुत सारे autoimmune disorders के साथ associate हो जाए, कोई और autoimmune disease जो साथ में pernicious anemia हो जाए, इस तरह से भी होता है, ठीक है। genetic predisposition, ये देखा गया है कि parasitic antibody जो है it is present in people due to some dominant autosomal gene, तो abnormal gene के presence की वजह से भी antibody बनती है, ठीक है। Then there are types of antibodies. There is blocking antibody, number 1. Then there is type 2 antibody. Then type 3 antibody. The blocking antibody blocks the binding of B12 to intrinsic factor. The type 2 antibody जो है वो intrinsic factor B12 complex को इलियम से binding होने देता है, absorption रोक देता है, और type 3 antibody जो है वो gastric proton pump effect करता है, इनके HCl नहीं बनता, तो वो डायरेक्ट प्रोटीन से B12 डायरेक्ट प्रोटीन से B12 रिलीज नहीं होती, स्टमक में ही बाउंड कर जाएगी। Blood cell morphology in these patients, macroviocytes, बड़े बड़े से cells होते हैं, न्यूक्लियर हाइपरसेगमेंटेशन, ठीक है, एब्नॉर्मल न्यूक्लियस होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के स्पेसिफिक, जो सेगमेंटेड सेल्स हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल्स है, पॉलीमॉर्फोन्यूट्रोफिल्स के सेल्स, उसके अंदर जो है सेगमेंट सेल बढ़ जाती है। देन इनफेक्टिव मेटाफोसिस के फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से बोन मैरो ब्लड बना रहा होता है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा होता, अंदर ही डैमेज हो जाता है, हेमोलिसिस हो जाती है डिफेक्टिव ब्लड सेल्स की और डैमेज हो जाता है। देन देयर इज पैनसाइटोपेनिया, ठीक है ना, जब the cells are damaged inside the marrow, nothing comes out, so the HP, the platelets, the WBCs all are reduced, ठीक है जी। So these are the cells, और
खुला नहीं है, लेकिन जिसे हम ये देख सकते हैं, दिस इज ओवेलोसाइट, ये ओवल मैक्रोसाइट, एमसीवी बढ़ जाता है, रेसल साइज बढ़ जाता है और एबनॉर्मल शेप हो जाती है, ठीक है, कुछ छोटे कुछ बड़े। एंड दिस इज हाइपरसेगमेंटेशन। ये न्यूट्रोफिल है, इसमें यूजुअली 3 to 5 नोड्स होते हैं, मगर यहाँ 1 2 3 4 5 6 नोड्स है, और ये एक नहीं होता है, बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स इस क्लास में अलॉन्ग विद पैनसाइटोकिनिन। ये प्लेटलेट है, ठीक है जी। ये मैरो है इस पेशेंट का। अब ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है, ये जो है ये रेड सेल्स है। अर्ली प्रिकर्सर्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आगे जब नहीं बढ़ पा रहा तो अर्ली प्रिकर्सर्स ज्यादा नजर आते हैं, एंड दे आर नॉट नॉर्मल। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ रेड सेल बट इट स्टिल हैज अ न्यूक्लियस। एट दिस स्टेज देयर शुड नॉट बी एनी न्यूक्लियस इनसाइड, इसमें जो न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन पड़ा, ठीक है ना। तो दिस इज डिलेड मैच्योरेशन ऑफ द न्यूक्लियस। रेड सेल का साइटोप्लाज्म मैच्योर हो गया, मीनिंग उसमें हीमोग्लोबिन आ गई। साइटोप्लाज्म में होती है ना हीमोग्लोबिन, वो आ गई, लेकिन न्यूक्लियस अभी तक बाहर नहीं गया, उसको बाहर निकलना चाहिए मगर नहीं गया। ये एक एबनॉर्मल न्यूक्लियस है, न्यूट्रोफिल के अंदर बिल्कुल डोनट की शेप में, दिस इज नॉट नॉर्मल, ठीक है, सही है। सो न्यूक्लियर एबनॉर्मलिटीज मिलती है, न्यूक्लियर मैच्योरेशन एबनॉर्मलिटीज मिलती है। ये भी रेड सेल है, इसकी भी न्यूक्लियस निकल जाना चाहिए था मगर और ज्यादा इमेच्योर, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स इन द B12 deficiency. Okay, now the morphologic changes in the pernicious anemia. Blood की changes तो हमने देखी है, और क्या changes होती है? Funded gland atrophy, ठीक है, क्योंकि हम क्या है, it is autoimmune disorder, the antibodies destroy the mucous lining of the stomach. So funded gland atrophy, intestinalization, intestine की जो होती है म्यूकोजा, वो रिप्लेस कर देती है नॉर्मल स्टमक म्यूकोजा को। तो इंटेस्टाइन के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकोस सिक्रीट करते हैं, वो आने लगते हैं, ठीक है। एट्रोफिक डोसाइटिस होने लगती है, टंग जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, इट लूजेस इट्स लाइन, ठीक है। रफ स्ट्रक्चर जिसको विलस की वजह से होता है वो खत्म हो जाता है। देन important to note is that these changes, the gastric atrophy and metaplasia. Metaplasia means one form of intestine epithelium changes to another form of epithelium. So ये endothelium mucosal lining changes हो जाते हैं। ये changes जो हैं ये क्या है, these are because of the autoimmunity. These are not because of B12 deficiency per se. तो ये जो changes हैं ये part of disease है, B12 supplement से ये ठीक नहीं होंगे, ठीक है। B12 सप्लीमेंट से आयरन की एनीमिया ठीक हो सकता है, लेकिन जीआई चेंजेस ठीक नहीं होती। देन जो हम बात कर रहे थे कि डीमाइलिनेशन, अब हम ये याद रखें कि पर्निशियस एनीमिया इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ B12 डेफिशिएंसी। तो वो सारा जो मेटाबॉलिज्म पढ़ा था B12 का कि माइलिन शीट के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, वो सब यहाँ पे अप्लाई होता है। डीमाइलिनेशन होती है बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल माइलिन जो बन रही थी वहाँ पे, वो खत्म हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है। तो एक तरह से एक्सॉन्स आर नेकेड एंड दे आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। So this results in spastic paraparesis, ठीक है, पैरालिसिस हो जाएगी, टोन बढ़ जाएगी, लोअर लिम्स जो है वो अकड़े हुए होंगे, लेकिन वो एक तरह से पैरालिसिस होगी। सेंसरी अटैक्सिया, खड़ा होगा तो वो चल नहीं सकेगा, उसको बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। और पैरास्थीसिया, बर्निंग सेंसेशन इन लोअर लिम्स, जो कि अक्सर लोग रिपोर्ट करते हैं, पाँव जल रहे हैं, तन जल रहे हैं B12 डेफिशिएंसी के साथ। इट टेक्स टाइम, जब वो खा लेते हैं B12 सप्लीमेंट्स लेते हैं तब भी बहुत टाइम लगता है इन चीजों को रिकवर होने, नर्व्स की रिजेनरेशन आसान नहीं होती। सो दिस इज पर्निशियस एनीमिया, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि स्टमक है और ये इसमें जो है ग्लैंड्स बने हुए हैं और पूरा नॉर्मल म्यूकोसा है, अच्छा खासा थिक, जबकि यहाँ पे पूरा फ्लैटन हुआ है, ब्लंट हुआ है। ये पर्निशियस एनीमिया का म्यूकोसा है, स्टमक खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर नहीं है मगर यहाँ गॉबलेट सेल इंटेस्टाइनाइजेशन वो सब चीजें आने लगती हैं, ठीक है। जो इंटेस्टाइन की प्रोसेस होती है वो म्यूकोसल चेंजेस जो है स्टमक में नहीं होती। ये स्टमक की सॉरी पर्निशियस एनीमिया की टंग है, दिस इज ऑल स्मूथ एंड रेड, ठीक है ना, बीफी टंग, दिस इज अ साइन ऑफ B12 deficiency व्हिच इज प्रेजेंट इन पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ जो कॉर्नर ऑफ द माउथ है वो भी खराब हुए हैं ना, खाल स्केलिंग हुई है, दिस इज आल्सो अ साइन ऑफ B12 deficiency। दिस में आल्सो बी सीन इन आयरन डेफिशिएंसी, जो म्यूकोजल प्रॉब्लम जो होती है मुंह के कोनों के ऊपर, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, वो दोनों हो सकती है, ठीक है। Now the clinical features in the lab diagnosis, this is because of the clinical features include megaloblastic anemia, leukopenia, and low platelets, hypersegmented neutrophil, जो हमने देखे। इसके अलावा जो डायग्नोसिस की हम बात करते हैं तो there are low levels of B12, high homocysteine level and methylmalonic acid levels। ये कौन सी दो चीजें हैं? ये वो चीजें हैं जो कि बैकलॉग हो रही है, होमोसिस्टीन से मेटेरियल नहीं बन रही
मिथाइल मेलानिक एसिड से सक्सेनाइल कोई नहीं बन रहा क्योंकि B12 की डेफिशिएंसी है। तो इन दोनों चीजों का, ये होमोसिस्टीन का और मिथाइल मेलानिक एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दिस इज आल्सो साइन ऑफ B12 डेफिशिएंसी। ठीक है, अब हाई होमोसिस्टीन लेवल्स आर रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस एंड थ्रोम्बोसिस। ये प्रूवन बात है कि हाई होमोसिस्टीन लेवल जो है वो एथेरोमा बनाने में काम करते हैं। ठीक है, एब्नॉर्मल फैटी एसिड बनाने में काम करते हैं। तो B12 सप्लीमेंट्स भी दिए जा सकते हैं जिन लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, और दिए जा रहे हैं एज वी और मस्ट बी नोइंग कि B12 थेरेपी जो है होमोसिस्टीन लेवल्स के लिए दी जाती है। We can also check for the antibody strengthening factor. Antibody strengthening factor will be a telltale sign कि भाई ये इसको megaloblastic नहीं है, pernicious नहीं है basically. And there is high risk of gastric carcinoma. People with pernicious anemia run a high risk of gastric carcinoma. ठीक है जी. Moving on to anemia of folate deficiency. Folate deficiency ब्लड साइंस होते हैं, दे आर सिमिलर टू द B12 साइंस के ब्लड में जो फाइंडिंग्स हैं वो B12 और फोलेट की सिमिलर होती है, बट द CNS symptoms are absent in the folate deficiency. Now folic acid or tetrahydrofolate is useful as it transfers one carbon units among compounds. ये शटल की तरह काम करता है, मिथाइल ग्रुप्स पर जैसे जो ट्रांसफर करता है, वन कार्बन यूनिट्स मिथाइल ग्रुप्स होते हैं बेसिकली CH3। ठीक है जी। अच्छा, जो प्रोसेसेस यूटिलाइज करते हैं वन कार्बन यूनिट ट्रांसफर्स को, which these include purine synthesis, that is DNA synthesis, conversion of homocysteine to methionine, deoxythymidylate monophosphate synthesis। ठीक है ना, जो हम थायमिडीन की सिंथेसिस की बात कर रहे हैं वो सब जो है फोलेट ट्रांसफर पे डिपेंड करते हैं। B12 की वजह से हो या खुद पर से फोलेट एसिड की डेफिशिएंसी हो, तीन चीजें अफेक्ट होती हैं। अच्छा, ये शो सही से नहीं करा बेसिकली। Dihydrofolate reductase, the enzyme, which is very important in the metabolism of folic acid, and it is used in conversion of FH2 dihydrofolate to tetrahydrofolate। जहाँ पे ये यूज हो जाता है तो इसको रिप्लेनिश करने के लिए ये जो है इसने अपने एचेंस दे दिए, ऑक्सीडाइज हो गया, तो उसने अपना मिथाइल ग्रुप दे दिया, तो ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको वापस आना है, ये वापस आने के लिए रिडक्टेज एंजाइम को यूज करता है। अगर ये एंजाइम अफेक्टेड है किसी वजह से, बाय बर्थ अफेक्टेड है या ड्रग्स की वजह से अफेक्टेड है, तो अगेन FH2 जो है वो FH4 में फिर कन्वर्ट नहीं होगा, साइकिल नहीं चलेगा। ठीक है, so this is the diagram in your book showing FH4 derivatives, folic acid derivatives, one carbon donor pool। ये वन कार्बन डोनर फ्रेगमेंट्स हैं, कई जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं, प्यूरिन, मेथियोनिन और BTFP में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में ये FH2 में कन्वर्ट हो जाता है। FH2 द्वारा FH4 में जाए उसके लिए हमें रिडक्टेज एंजाइम चाहिए। Once the FH4 is replenished, it goes again into the FH4 folic acid derivatives। ठीक है जी, ओके। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अल्कोहलिज्म की वजह से, ड्रग्स की वजह से, देन डाइट की वजह से, इन्फेक्शंस या इन्फेक्शंस ये एब्जॉर्ब होता है जूजियम के अंदर। ठीक है, सो इन्फेक्शंस, सीलिएक स्टोन जो कि एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है, प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ इंक्रीज नीड्स, सोरियासिस बिकॉज ऑफ इंक्रीज नीड्स, रैपिड प्रोलिफरेशन होती है स्किन की सोरियासिस में, झड़ती है बहुत ज्यादा, तो उस ज़ाहिर है उसकी वजह से इसकी फॉलिक रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन फॉलिक एसिड एंड its stores are only sufficient for 3 months, तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ओल्ड एज में डाइटरी डेफिशिएंसी है, ड्रग्स है, ठीक है, डायरेंटिन पेनिटोनिन व्हिच अफेक्ट्स द रिडक्टेज एंजाइम। ठीक, वाटर सॉल्युबल एंजाइम में 50 to 200 माइक्रोग्राम डेली रिक्वायरमेंट्स होती है। ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है लेटस, पीच, एस्पैरागस, ब्रोकोली। ठीक है ना, and as it is a water soluble enzyme, water soluble vitamin, it is destroyed by boiling, steaming or frying for long periods। ठीक है, 95% of the folic content is destroyed। तो अपने आप कैसे रिप्लेनिश करें? आप जाहिर है हर चीज तो कच्ची नहीं खाई जा सकती, लेकिन आप सैलेड्स लें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो कच्ची खाई जा सकती हैं वो लें, लेटस लें। ओके, फॉलिक एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइट कैसी होती है? पॉलीग्लूटामेट फॉर्म ऑफ फॉलिक होती है, देन इट इज एब्जॉर्ब इनटू इंटेस्टाइन मुकोसा मोनोग्लूटामेट। ग्लूटामिक एसिड मोनोग्लूटामेट फॉर्म में आता है, एब्जॉर्ब होता है लो पीएच, एसिडिक पीएच इसको चाहिए, तो HCl इसको चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, देन इट एंटर्स द ब्लड सर्कुलेशन एज N-methyl tetrahydrofolate, N-methyl tetrahydrofolate, and it circulates bound to either albumin or other binding proteins। ठीक है जी,
फोलेट एंटागनिस्ट वो ड्रग्स जो कि फोलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं। दिस इज द फोलेट रिडक्टेज एंजाइम जिसकी हम बात कर रहे थे। डायहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में जो कन्वर्ट करते हैं। ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड मुख्तलिफ चीजों में यूज होता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू डायहाइड्रोफोलिक एसिड और फिर ये रिप्लेनिश होता है। So certain antibiotics, for example, trimethoprim and sulfonamides inhibit this conversion. क्योंकि they inhibit or affect the folate reductase. ठीक है, these are called folate antagonists. इसके अलावा जो आप कीमोथेरेपी पेशेंट्स को मिल रही होती है वो भी folate antagonists होते हैं। Clinical features in lab diagnosis, इसके अंदर जो है megaloblastic is one of the features. Then other features of anemia. ठीक है। Then when we are talking of lab diagnosis, we discuss low folate and homocysteine levels. वो दोनों low हो जाते हैं। Normal methylmalonate levels, ठीक है। Neurologic changes do not occur in these patients, and hematological symptoms of B12 deficiency respond to folate treatment. लेकिन neurologic CNS के problems जो अगर B12 के deficiencies की ऐसे हो गए वो ठीक नहीं होते। मतलब ये कि अगर B12 deficiency की है उसके effects तो आप फोलिक एसिड देके उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं as far as the blood cells are concerned, मगर CNS के issues को resolve नहीं कर सकता फोलिक एसिड until अब B12 दें वो भी फिर irreversible ही होती है जो CNS की defects होती है most of the time। Last but not the least, aplastic anemia, ठीक है। It is the pancytopenia या deficiency of red cells, platelets and white cells which occurs due to bone marrow failure. बोन मैरो बनाना बंद कर देता है तो ब्लड सेल्स में कमी आ जाती है। etiology acquired which can be immune-mediated or some stem cell defects. Then it can be chemicals will be dose related कि जब high doses के ऊपर pancytopenia होना शुरू हो जाए। antibiotics and chemotherapy are included in this group. Then idiosyncratic, that is antibiotics which are not usually associated with cytopenias but can cause in certain people. Physical agents, viral infections, especially hepatitis viruses, irradiation, then inherited causes, specifically panthenol anemia, ठीक है, and telomerase defect. अब हम आगे इसको देखेंगे telomerase क्या चीज होती है और क्या करती है। पहले हम देखते हैं panthenol anemia. Panthenol anemia is an autosomal recessive disorder, defective DNA repair, and the features are marrow hypofunction and other congenital anomalies. सिर्फ marrow पे effect नहीं करता, इसके अंदर skeletal changes भी हो सकती हैं। For example, hypoplastic kidney and this absent radii syndrome. इसके अंदर से thumb जो है direct जो है attach हो गया है, बीच में radius मौजूद नहीं है, ठीक है ना। skeletal deformities होती है। Café spot abnormal pigmentation होती है, mental retardation ठीक हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये जो Fanconi syndrome है बाद में किसी कंफ्यूज करते हैं। Fanconi syndrome is disorder of the kidney tubules and Fanconi anemia is the disorder of the bone marrow, ठीक है। although इसमें भी कुछ किडनी के इफेक्ट होता है लेकिन ये हाइपोप्लास्टिक किडनी का, तो दोनों चीजें अलग अलग है। Fanconi anemia की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने कहा टेलोमेरेज डिफेक्ट्स। टेलोमेयर क्या करता है? टेलोमेयर्स बेसिकली नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस है और वो इसलिए डीएनए के एंड पे होते हैं ताकि वो डैमेज से इसको बचाए। हर दफा जब माइटोसिस होती है तो टेलोमेयर्स शॉर्टन हो जाते हैं एंड दिस कॉजेस सेल एजिंग एंड डेथ। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए टेलोमेरेज एंजाइम होता है व्हिच कीप्स एडिंग द रिपीटेटिव सीक्वेंसेस टू टेलोमेरेज, ठीक है। लेकिन ये टेलोमेरेज जो होता है ये गैमेट्स के अंदर होता है, स्टेम सेल्स में होता है और ट्यूमर सेल्स में होता है। नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में नहीं होता, इसलिए हम एज कर देते हैं। हम एज हो जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ जाती है और हमारी चाइल्ड डेथ एंड देन इंडिविजुअल्स डेथ, ठीक है जी। अभी टेलोमेरेज डिफेक्ट को पिक्टोरियली शो कर रहे हैं। दिस इज द रेड जो एंडिंग है वो टेलोमेयर अटैच हो गया डीएनए के साथ, ठीक है। डिवीजन के बाद टेलोमेयर खत्म हो गया, ठीक है। लॉस ऑफ फंक्शन हो गया क्योंकि यहाँ एंड जो था वो ओपन हो गया है। जैसे पेंसिल का एज निकाल दिया तो वो डैमेज हो जाता है, तो ये टूट गया बिकॉज यहाँ पे कैपिंग नहीं हुई थी टेलोमेयर की। उस पर मुख्तलिफ जाके केमिकल्स मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए, डीएनए डैमेज प्रोटीन्स आ गई। और वो जो है जब डैमेज प्रोटीन्स आती हैं तो सिग्नल मिलता है कि ये डीएनए डैमेज हो चुका है या सेल डैमेज हो चुका है। सो जीनोम इंस्टेबिलिटी होती है, सेनेसेंस होती है, एपोप्टोसिस हो जाती है, तो सेल ही हटा दिया जाता है जिसमें ये चेंजेस आ रहे होते हैं। सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर टेलोमेरेज डिफेक्ट हो तब भी ये होगा और जो नॉर्मल सोमैटिक सेल जिनमें टेलोमेरेज होता नहीं है उनमें भी यही होगा। पैथोजेनेसिस एप्लास्टिक एनीमिया,
अच्छा, अब हम ये बात कर रहे थे कि उसमें तो जेनेटिक चेंजेस है जो फेनकनीज में और उसमें टेलोमेरेज डिफेक्ट में तो जेनेटिक चेंजेस है। नॉर्मल जो एक्वायर्ड प्लास्टिक एनीमिया में उसमें क्या पैथोजेनेसिस इंक्लूड्स immune mediated suppression of stem cells. Stem cells are affected by drugs, infections और environmental insults, radiation हो गई, ठीक है। इससे क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दीज प्रोड्यूस साइटोकाइन्स, इंटरफेरॉन निकलती है, ट्यूमर निकोसिस फैक्टर निकलता है, these things kill the stem cells. सही, तो ड्रग्स ने जो है स्टेम सेल्स को अल्टर किया, स्टेम सेल्स के अंदर चेंजेस आएंगे, वो डैमेज होंगे, बॉडी ने उसको एबनॉर्मल लेबल कर दिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो हाउ कैन वी से दैट दिस इज पैथोजेनेसिस ऑफ प्लास्टिक एनीमिया? इसका एविडेंस ये है कि इम्यूनोसप्रेशन से प्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट्स को इंप्रूवमेंट मिलती है, उनके ब्लड काउंट्स इंप्रूव कर जाते हैं, ठीक है। दूसरा पैथोजेनेसिस जो है वो है इंट्रिंसिक एब्नॉर्मैलिटी ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल्स के अंदर जो जीनोम है या क्रोमोसोम्स है, उनमें एब्नॉर्मैलिटीज होती है, सो कैरियोटाइपिक एबरेशंस होती है। उसका एविडेंस क्या है कि ये होता है, इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक मैरोप्लेन ट्रांसफॉर्म टू ल्यूकीमिया प्रेजेंट करता है पेशेंट पैनसाइटोपेनिया के साथ, बोन मैरो उसका देखा जाता है, बोन मैरो खाली होता है, और फिर कुछ अरसे उसको फॉलो करने के बाद औकात होता है कि उसी में पेशेंट के अंदर एक्यूट ल्यूकीमिया डेवलप हो जाता है। इसका मतलब उसके अंदर कोई क्रोमोसोम में एब्नॉर्मैलिटी थी जो वक्त के साथ साथ इट गिव राइज टू ल्यूकीमिया, ठीक है। सो इम्यून मेडिएटेड भी हो सकता है एंड इंट्रिंसिक एब्नॉर्मैलिटी ऑफ स्टेम सेल हो सकती है। इंट्रिंसिक एब्नॉर्मैलिटी के अंदर बाय बर्थ स्टेम सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कैरियोटाइपिक प्रॉब्लम है, और जो इम्यून मेडिएटेड है उसके अंदर नॉर्मल स्टेम सेल पे बाद के फैक्टर्स ने एक्ट किया। उसी की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये स्टेम सेल है एनवायरमेंटल इंसल्ट के साथ, जेनेटिकली ऑल्टर्ड स्टेम सेल। अब इसमें न्यू एंटीजेंस आ गए एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनवायरमेंटल इंसल्ट। ये एबनॉर्मल स्टेम सेल हो गया बॉडी के लिए, बॉडी के टी सेल रिस्पॉन्स हुआ, उसने इसको खत्म कर दिया। जब स्टेम सेल खत्म हो जाता है तो मैरो एक्लेजिया में चले जाता है। एक दूसरा मैकेनिज्म ये कह रहे हैं कि जेनेटिकली ऑल्टर्ड स्टेम सेल है ये, इसने बनाना बंद कर दिया, सेल्स बनाने बंद कर दिए, इसके अंदर कोई इम्यून रिएक्शन नहीं है, मगर ये रिड्यूस proliferation और डिफरेंशिएशन कैपेसिटी होगी, तो मैरो खाली हो गया अगेन। दिस इज हाउ इट लुक्स, दिस इज अ हेल्दी बोन मैरो, ठीक है। ये बोनी एरियाज है इसके, ठीक है, डिफाइंड बायोप्सी है। ये पिंक पिंक जो है ये सारे ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल के प्रिकर्सर्स है, एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स, प्लेटलेट प्रिकर्सर्स, ल्यूकोसाइट प्रिकर्सर्स, और ये वाइट वाइट जो है फैट है, ठीक है। एज के साथ साथ फैट ज्यादा होती जाती है, रेड एरिया कम होता जाता है, बट इट इज नेवर लाइक दिस, इस तरह से कभी नहीं होता। दिस इज एप्लास्टिक एनीमिया, अगेन इसमें ये बोनी पार्ट से ट्रेडिशनली है और ये सारी फैट स्पेसेस है। बीच बीच में जो थोड़ा बहुत तुम लोगों को ग्रैन्युलेटेड नजर आ रहा है, थोड़े बहुत रेजिडुअल सेल्स है, लेकिन सारे दे आर नॉट इनफ टू कीप द सीबीसी मार्क। सो दिस इज हाउ द एप्लास्टिक एनीमिया पेशेंट लुक्स, मैरो इन द एप्लास्टिक एनीमिया लुक्स, ठीक है जी। क्लिनिकल फीचर्स, any age and either gender can be affected. It has an insidious onset, overnight नहीं होता, ठीक है। और फीचर्स वही हैं जो एनीमिया के या लो प्लेटलेट्स के या न्यूट्रोपीनिया के हो सकते हैं, उनके वीकनेस एंड पैरा बिकॉज ऑफ एनीमिया, पेटिकिया काइमोसिस ब्लीडिंग ड्यू टू लो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और इन्फेक्शंस हो सकते हैं लिपोपीनिया या न्यूट्रोपीनिया के वजह, ठीक है। स्प्लेनोमेगाली शुड बी एब्सेंट in aplastic anemia, there should be no abnormal splenomegaly, ठीक है। अगर फिल्म बड़ी भी है ऐसे पेशेंट की जिसको हम एप्लास्टिक सोच रहे हैं, तो वो कोई और डिसऑर्डर है, एप्लेजिया नहीं, ठीक है। दिस इज अ रूल, ओके। वी हैव टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर कॉजेज ऑफ पैनसाइटोपेनिया। एप्लास्टिक एनीमिया पैनसाइटोपेनिया करता है, मगर ल्यूकीमिया भी इनिशियली पैनसाइटोपेनिया कर सकता है, ठीक है। स्प्लेनोमेगाली भी पैनसाइटोपेनिया कर सकती है, तो उन सब चीजों को रूल आउट करना जरूरी है। और इसकी डायग्नोसिस डेफिनेटली बोन मैरो बायोप्सी से हो सकती है। पैनसाइटोपेनिया सीबीसी पे देख के आप डायग्नोस नहीं कर सकते कि ये एप्लास्टिक है, यू हैव टू हैव बोन मैरो बायोप्सी, ओके जी। हाँ जी, इसको क्या करना है, इट इज कम्प्लीटेड।
TIBC is basically total iron binding capacity. मॉर्फोलॉजिक फीचर्स ऑफ आरबीसी नॉन एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में चूंकि कोई डेफिशिएंसी नहीं हो रही होती, इसलिए आरबीसी की शक्ल नॉर्मल होती है। थोड़ा बहुत साइज बड़ा हो सकता है, लेकिन बेसिकली इट इज नॉर्मोक्रोमिक एंड नॉर्मोसिस्टिक। ठीक है। टीआईबीसी इज बेसिकली टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, जो इट शोज कि जो ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल है वो कितना सैचुरेटेड है आयरन से। Pernicious anemia is maturation defect, because pernicious anemia is because of B12 deficiency. Sorry, pernicious anemia results in B12 deficiency. एप्लास्टिक एनीमिया पायोबाइज B19 से वो रेड सेल एप्लेजिया होता है, टोटल मैरो नहीं बैठता, उसमें रेड सेल्स की कर्सर्स खत्म हो जाते हैं। You're welcome.